So, hello everyone, my name is Justice and I am your English trainer. And today we are diving in this third session of conditional sentences in English. We had already covered if clauses, and we also have seen some of the applications of these conditions. Like basically, we have covered zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Four concepts in a row, right? So let us begin with this um, in more specific way. So here we are. When we are talking about conditional, we know, like we have already covered, if clauses are used generally. So the conditionals are used to talk about real or unreal situations, sometimes called if clauses. Okay, so we begin with if clause actually, and why we are calling it condition? They We know the things are very clear. If something is to happen, there is a condition. Like for example, if it rains, I'll go to I'll not go to market. If it rains, I will not go to the market. It means I will not go to the market is depending on the condition that if it rains, and if it doesn't rain, I will go to market. Sorry, if it doesn't rain, I will go to market. So my going depends on um, the atmosphere. If it is not raining, if the atmosphere is quite clear, then I'll go to market. Otherwise, I'll not go to market. Right. So we see the condition here, like something is happening and depending on another condition. So if clauses used to show an action is reliant on something else. Reliant means which rely on something. Rely means which depends on something. सो जो कुछ किसी पर निर्भर करे उसको बोलते हैं रिलायंट रिलाई करना राइट सो यूज टू शो एन एक्शन इज रिलायंट ऑन समथिंग एल्स जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा कि मैं मार्केट जाऊंगा अगर बारिश नहीं होगी या फिर मैं मार्केट नहीं जाऊंगा अगर बारिश होगी राइट कंडीशन रियल कंडीशनल कैन बी फाउंड एंड अनरियल कंडीशनल कैन आल्सो बी फाउंड रियल conditional describes real life situation and unreal conditional describes unreal imaginary situations where things are not real but we are considering it hypothetically. For example, in second conditional we had seen the things were not quite real. For example, yesterday I gave you example that अगर तुमने उसे गाली दी होती तो मैं तुम्हें पीटता अगर तुमने उसे गाली दी होती तो मैं तुम्हें पीटता इट मीन्स समथिंग विच एक्चुअली डिड नॉट टेक प्लेस इन पास्ट बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट अगर तुमने उसे गाली दी होती तो मैं तुम्हें पीटता इट मीन्स आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट हाउ टू ट्रांसलेट दिस दी होती होता कॉन्सेप्ट आर यू एबल टू ट्रांसलेट दिस स्टेटमेंट अगर तुमने उसे गाली दी होती तो मैं तुम्हें पीटता इफ यू आर एबल टू ट्रांसलेट कैन यू डू इट अगर तुमने उसे गाली दी होती तो मैं तुम्हें पीटता द नेटवर्क इज अनस्टेबल ड्यू टू ट्रैवलिंग ओके अतुल जी अगर तुमने उसे गाली दी होती तो मैं तुम्हें पीटता माई वॉइस इज ब्रेकिंग ओके वेट अ मोमेंट लेट मी सी व्हाट कैन आई डू इज माई वॉइस क्लियर नाउ और इफ इट इज ब्रेकिंग देन आई वुड switch to another Yes, Wi-Fi. sir. It's breaking or it's clear? It's clear. It's clear? Clear. Okay. All right. So I was talking about this. अगर तुमने उसे गाली दी होती तो मैं तुम्हें पीटता. We already did this yesterday. If you are able to translate, then do it. Otherwise, I'll be letting you know the right translation. It is past of past. होता concept, right? अगर तुमने उसे गाली दी होती तो मैं तुम्हें पीटता. Yes, Atul ji has answered. If you had abused him, I must have beaten him. Well done. Atul ji is trying to emphasize that मैं तुम्हें जरूर पीटता. That's why he has used must have. Otherwise, you can also go with would have. Right? If you had abused him, I would have beaten him. Or I must have. Or if there is less possibility, then you can also use might have. Right? Okay. Good. Great. अगर तुमने उसे गाली दी होती तो
If you had abused him, I must have or I would have beaten him. But here we are talking about something um, hypothetical, which was not actually um, in existence, but we are creating it hypothetically. Okay, if this had happened, this would have taken place as byproduct, right? सो यहाँ पर हम बात की कि ऐसे सिचुएशन की जो एक्चुअली में हुआ नहीं है, वो एग्जिस्टेंस में था ही नहीं ऐसा, बट हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये हाइपोथेटिकल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कहा गया एक एग्जांपल हो गया अनरियल कंडीशनल। ओके, सो हमने बात की, एक बार फिर से बिगनिंग में बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर। और कंडीशनल सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं, पहला इफ क्लॉज, दूसरा मेन क्लॉज। तो क्लॉज की बात हमने की थी, क्लॉज किसे बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो सेंटेंस ही समझ लीजिए, इसको वाक्यांश बोलते हैं हिंदी में, मतलब एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे तो एक हमारा मेन क्लॉज होता है, एक इफ क्लॉज होता है। इफ क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट होगा, ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ, इसमें उस केस में करेंगे तो यहाँ पर इफ क्लॉज इस तरह से आ जाएगा, और ये फ्री होगा, ठीक है। इफ इट रेन्स टुमारो, ये डिपेंडेंट होगा, एंड ये हमारा मेन क्लॉज हो जाएगा। आपको एक बार प्रीवियस क्लास में भी बताया था, मैं डिस्कशन करता था। डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और मेन क्लॉज का दूसरा नाम प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो जैसे हम इसका हिंदी निकालने की कोशिश करते हैं, इफ इट रेन्स टुमारो वी विल पुट ऑन रेन कोट्स, हम रेन कोट्स पहनेंगे अगर बारिश होगी कल। कल अगर बारिश होगी तो हम रेन क्लॉथ्स पहनेंगे। आपका मन कर रहा होगा इफ इट विल रेन लगा दें, वॉइस इज ब्रेकिंग, माय गॉड, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, वेट अ मोमेंट, लेट मी स्विच टू द अनदर वाईफाई, वेट, just give me a moment. Clear now? Let me know, am I clear now? Am I now clear? No, my voice is not clear. All right. Yes, let me know, am I audible now? Am I audible? Let me know, am I audible now? Yes. Okay. All right. So let's move forward. Conditional sentences can be subdivided into parts, ये बात कर रहे थे हम लोग। इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। इफ क्लॉज को हम डिपेंडेंट बोल सकते हैं, यहाँ पे सबऑर्डिनेट बोल सकते हैं। जो मेन क्लॉज की पहचान होगी वो फ्री होगा, अपने आप में पूरा स्टेटमेंट होगा। इसलिए मैंने बोला कि वी विल पुट ऑन रेन कोट्स, हम रेन कोट्स पहनेंगे, अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहा है ये, ठीक है, अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमने ये बात कर ली, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ अगर बारिश होगी कल, अगर कल बारिश होगी, अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो ये आपको कहेगा कि भाई अगर कल बारिश होगी तो क्या, मतलब ये क्वेश्चन बन रहा है ना, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट। तो इफ क्लॉज हो गया वो कंडीशन को शो कर रहा है, और साथ में डिपेंडेंट क्लॉज भी, ठीक है, इस चीज को समझ। तो इफ क्लॉज हो गया प्लस मेन क्लॉज, दो चीजें होगी, इसको हम टू हाफ्स भी बोल सकते हैं, टू पार्ट्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, कंडीशनल सेंटेंस की बात की हमने, तो द ऑर्डर ऑफ टू क्लॉज इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल है मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दो, बस मैंने एक चीज बताई थी आपको। अगर ऐसे करते हैं, अगर कल बारिश होगी तो मैं घर पर रुकूंगा। इफ इट रेन्स, याद रखिएगा इट विल रेन नहीं करेंगे, बारिश होगी तब भी नहीं करेंगे ऐसे बोलेंगे तो, या बारिश होती है इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, बट आगे वाला जो है सिंपल प्रेजेंट में करेंगे तो यहाँ पर will आएगा। विल को शॉर्ट में आई लिखा है यहाँ पे, I will, ठीक है। ऑलराइट, तो वी हैव सीन, अगर कल बारिश होगी, इफ इट रेन्स पहले कर लिया, आई विल स्टे एट, चाहे तो इसको मैं इधर कर सकता हूँ, आई विल स्टे एट होम पहले कर लिया, अब ये कॉमा हटा दिया, अब जब ये पहले करते हैं इफ वाला बाद में करते हैं तो कॉमा लगाने की नीड नहीं, ठीक है।
लोग देन भी यूज करते हैं, देन मैं कहूंगा कि एक्चुअली में मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं होता है, इसलिए मैं उसको लेके ही नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, तो इफ इट रेन्स कॉमा आई विल स्टे एट, देन अगर यूज करना है, मान लीजिए मन ही कर रहा है, जैसे तब की हिंदी होती है then, तो इफ इट रेन्स देन आई विल स्टे एट, कॉमा की जगह देन लगा सकते हैं। बट इस वाले में जब आप स्विच करते हैं आगे, तो इसमें देन का यूज नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते देन आई विल स्टे एट होम इफ इट रेन्स, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हाँ, देन का यूज करना ही है, तो इफ इट रेन्स देन आई विल स्टे एट होम, आई विल स्टे एट होम, या फिर कॉमा लगा लेंगे। ठीक है, बट मैं कहूंगा सजेशन मेरा ये है कि देन का यूज मत कीजिए, डायरेक्टली बोलिए इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, या आई विल स्टे एट होम इफ इट रेन्स, दोनों तरीके से। When the if clause comes first, it must be followed by a comma। ये देखिए, आपको मैंने यहाँ पे लिखवा भी दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम फोर टाइप्स की बात कर रहे थे, तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो पॉसिबिलिटीज होंगी, जो जो भी प्रोबेबिलिटी बनेगी कोई काम करने की, दैट दे एक्सप्रेस ईच टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस यूज, यूज होना चाहिए, यूजेस करते हैं, यूज डिफरेंट टेंसेस, हर एक टाइप का। अच्छा, ईच है तो फिर यूजेस, ईच टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस यूजेस डिफरेंट टेंसेस टू शो द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमने यहाँ बात की कि हर एक टाइप का जो कंडीशनल सेंटेंस है वो डिफरेंट टेंसेस को यूज करेगा। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, पहले वाले में सिंपल प्रेजेंट था और आगे वाले में विल लगा हुआ है ना, तो विल वाले को आप ये कह सकते हैं फ्यूचर वाला है, या फिर आप मॉडल वर्ब के साथ भी जा सकते हैं, आगे देखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पर देख लेते हैं आप फाइनली। तो ये हमने कवर भी किया था कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप्स। जीरो कंडीशनल, पहला फैक्चुअल, कोई चीज फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रुथ है, तथ्य है, मतलब उसको नकारा नहीं जा सकता। या फिर जो आपको लग रहा है कि ऑब्वियस है, मतलब जो चीज बिल्कुल है कि वो होनी ही होनी है, होती ही होती है, होनी होनी नहीं, वो होती ही होती है, ऐसा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि वैन, या फिर आप चाहें तो वैन की जगह इफ, एक्चुअली में बात तो इफ ही की हो रही थी, लेकिन हमने वैन का भी यूज कर लिया, तो वैन भी यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि सेंस में आ रहा है। तो इफ या वैन प्लस प्रेजेंट टेंस, उसके बाद भी प्रेजेंट टेंस आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वाटर बॉइल्स इफ इट रीचेस 100 डिग्री, राइट, या 100 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। या इसको मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ, इफ वाले को आगे कर लूँ, इफ इट रीचेस 100 डिग्री वाटर बॉइल्स। एक एग्जाम्पल ये हो गया। वैन के साथ बनाना है तो ऑफकोर्स वैन के साथ भी बन जाएगा, एग्जाम्पल लिख लेंगे वैन में भी, वाटर बॉइल्स व्हेन इट रीचेस 100 डिग्री, राइट। या फिर व्हेन इट रीचेस 100 डिग्री वाटर बॉइल्स। यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी आपने, रीचेस और बॉयल्स दोनों सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है। सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर हैबिचुअल वर्ब बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, जो भी आपको बोलना है उसको बोल सकते हैं, रिपीटेड वर्ब भी बोलते हैं। तो ये फैक्ट वाली बात है। तो फैक्ट में इधर प्रेजेंट टेंस रहेगा सिंपल वाला, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इधर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप 2 और 3 जोड़ते हैं तो आप 5 रिजल्ट पाते हैं। 2 और 3 जोड़ते हैं तो आप 5 एज रिजल्ट पाते हैं, इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर आप 2 और 3 जोड़ते हैं तो आप 5 एज अ रिजल्ट पाते हैं, एज अ रिजल्ट पाते हैं। अगर आप 2 और 3 जोड़ते हैं तो आप 5 एज अ रिजल्ट पाते हैं, जल्दी से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप 2 और 5 जोड़ते हैं तो आप 5 एज अ रिजल्ट पाते हैं। 2 and 3 मेक 5, बहुत शॉर्ट में लिख दिया आपने, मैं इस तरह से नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इफ का यूज करके, अगर, है ना। अनामिका जी ने थोड़ा सा जल्दीबाजी में किया है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ इसकी जगह इफ होगा। इफ यू एड 2 and 3 यू गेट 5 एज रिजल्ट, करेक्ट है आपका। ठीक है, इफ यू एड 2 and 5 देन यू गेट 2 and 5, 2 and 3 था ना, तुम जीतनी जल्दबाजी में। ठीक है, 2 and 3 एड कर लिया, देन यू गेट 5 एज रिजल्ट भी बोल सकते हैं। इफ यू एड 2 and 3 इट रिजल्ट 5, हाँ ये भी बोल सकते हैं, इट रिजल्ट 3 सेंस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 2 और 3 बोलते हैं तो 5 रिजल्ट आता है, कॉमा लगाएंगे लेकिन सिर्फ जी 2 और 3 के बाद, है ना। ऑफ इफ, क्या कर रही है नाम क्या जी। अ, आशिका जी ने लिखा है इफ यू ज्वाइन, ज्वाइन नहीं, जोड़ने का मतलब यहाँ पे ज्वाइन नहीं होगा, ऐड होगा। ठीक है, एड 2 and 3 यू गेट 5। ठीक है, बढ़िया।
इफ यू एडेड, एडेड नहीं आएगा सुजीत जी, ये फैक्चुअल बात है ना, एडेड नहीं आएगा। जोड़ते हैं, सिंपल सी बात है। तो जोड़ने पर हमेशा ही आता है 5। तो इफ यू ऐड 2 and 5, कॉमा द रिजल्ट इज 5, ये भी कर सकते हैं, ये भी सेंस सही है। इफ यू ऐड कॉमा द 2 and 3, द रिजल्ट इज 5, या द रिजल्ट इज ऑलवेज 5, है ना। इफ यू ऐड 2 and 3 यू गेट 5, बहुत बढ़िया साबित्री से। इफ यू ऐड 2 and 3 यू गेट 5, सही है। साथ विष्णु जी, इफ यू ऐड 2 and 3 यू गेट 5, सही है, सब लोग ये कर रहे हैं। इफ यू ऐड 2 and 3 यू गेट 5 एज अ रिजल्ट, बहुत बढ़िया। हमारे जज ने बिल्कुल हार्डकोर ट्रांसलेशन किया है। ट्रांसलेशन मैंने जो बोला था उसके बेसिस पे बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल आर्टिकल लगा करके भी। इफ यू ऐड 2 and 3 यू गेट 5 एज अ रिजल्ट। संगम जी, इफ यू ऐड 2 and 3 यू गेट 5, हाँ ठीक है, साइंस के बेस पे आपको सही। तो आप समझ पाए, आप समझ पाए कि जब हम फैक्चुअल बात करते हैं, या जब जब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, या जब कोई ऑब्वियस चीज होती है, तो वहां पर हम दोनों में सिंपल प्रेजेंट का यूज कर लेते हैं। एक एग्जांपल और करके दिखाएंगे आप लोग। अगर आप गर्म के बाद, अम, गर्म के गर्म खाने के बाद अ, ठंडा, गर्म खाने के बाद ठंडा पीते हैं। अगर आप गर्म खाने के बाद ठंडा पीते हैं, या फिर ऐसे करेंगे आप, अगर आप गर्म खाने के बाद चिल्ड वाटर पीते हैं तो आपको कोल्ड हो जाता है। अगर आप गर्म खाने के बाद चिल्ड वाटर पीते हैं तो आपको कोल्ड हो जाता है। सोचिए, समझिए और करिए। अगर आप गर्म खाना खाने के बाद चिल्ड वाटर पीते हैं तो आपको कोल्ड हो जाता है। ठंडा तो नॉर्मल भी आ सकता है, चिल्ड बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। क्या ये फैक्चुअल हो सकता है? एक बार समझिएगा और देखिएगा। अगर आप गर्म खाना खाने के बाद चिल्ड वाटर पीते हैं तो आपको कोल्ड हो जाता है। मेरे बोलने के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे इसको? इफ यू ड्रिंक चिल्ड वाटर देन यू गेट कोल्ड। अतुल जी ने आंसर किया। अतुल जी, सही है आपका। इफ यू ड्रिंक चिल्ड वाटर देन यू गेट कोल्ड, देन लगाया आपने। मैं सजेस्ट करूंगा मॉडर्न इंग्लिश में देन का यूज नहीं होता है, बट वो सही है, आपने जो किया है, ठीक है। इफ यू ईटन, नहीं जी, ईटन हॉट फूड एंड ड्रिंक चिल्ड वाटर, ईटन क्यों कर दिया? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में ईटन तो आता ही नहीं। फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ यू ईट हॉट फूड एंड ड्रिंक चिल्ड वाटर देन यू गेट कोल्ड, ये सही होगा आपका। इफ यू ड्रिंक चिल्ड वाटर आफ्टर हॉट फूड, अंशिका जी ने किया, चिल्ड वाटर कर लीजिएगा, चिल्ड नहीं, यू गेट कोल्ड। इफ यू ड्रिंक चिल्ड वाटर आफ्टर हॉट फूड यू मे फील कोल्ड। अनामिका जी ने मे लगा किया है, पॉसिबिलिटी दिखाई है, क्योंकि उनको थोड़ा यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं लग रहा था। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इफ यू ईट हॉट फूड एंड ड्रिंक चिल्ड वाटर यू गेट कोल्ड, ठीक है। चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इसको फैक्ट लेता हूँ, एज अ फैक्ट, है ना, जैसे मैंने मैंने जिस टोन में बात की थी कि अगर आप चिल्ड वाटर लेते हैं और गर्म खाने के बाद, तो उसके बाद आपको कोल्ड हो जाता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कोशिश कर रहा था कि फैक्चुअल बनाने की। तो अगर मैं उस कोशिश में आंसर दूंगा, तो ये डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअली में यहाँ पे हो जाएगा। और जनरली होता भी है, हो भी जाता है ऐसा कि आप अगर बहुत ज्यादा गर्म खाना खा रहे हैं और एकदम से आपने बहुत ठंडा पानी पी लिया तो कोल्ड हो जाता है ना। तो जब कभी आपको फैक्चुअल बनाना होगा, या फिर ऑब्वियस चीज बोलनी होगी कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, तो वहां पर आप उसका यूज कर लेंगे, दोनों में सिंपल प्रेजेंट, कोई भी दिक्कत नहीं। तो काफी लोगों ने सिंपल प्रेजेंट में किया है, एक्सेप्ट सावित्री जी, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल याद कीजिए जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें बोला गया था कि अगर मैं लेट होता हूँ तो टीचर गुस्सा करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। इफ आई एम लेट टीचर गेट्स एंग्री। वहां पर भी क्या है, दरअसल दोनों तरह से बन सकता है, बट वहां पर मैंने दिखाने की कोशिश की कि ये तो होता ही होता है, मतलब टीचर गुस्सा करते ही करते हैं, मतलब लेट हुए नहीं गुस्सा करेंगे। तो जब आप ये दिखाते हैं ना तो वो इस तरह से कर लेंगे, बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अगर मैं लेट होऊंगा तो टीचर गुस्सा करेंगे, तो हम ऐसे कर सकते हैं, इफ आई गेट लेट या इफ आई एम लेट टीचर विल गेट एंग्री, या टीचर मे गेट एंग्री, या पक्का है तो मस्ट भी लगा सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कैसे। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जिसमें 100% आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था 2 और 3 वाला, वो तो 100% ही है, उसमें आप कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, राइट। तो उसमें आपको सिंपल प्रेजेंट में ही जाना है। जैसे सूरज, अगर सूरज पूरब में उगता है तो पश्चिम में छुपता है, ये भी 100% है। अगर आप दूध में नींबू डालते हैं तो दूध फट जाता है, ये भी 100% है।
तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो फैक्चुअल हो सकती हैं, जो 100% उसको नकारा नहीं जा सकता, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आपने फैक्ट बना दिया है क्योंकि वो जनरल लाइफ में आपके ऐसे ही चल रहा है। ठीक है। जैसे मैं इसी को और घुमा कर बोलूं, अगर मैं गर्म पानी के बाद नहीं, गर्म खाने के बाद चिल्ड वाटर पीती हूँ या पीता हूँ तो मुझे कोल्ड हो जाता है। ये मुझे हर बार होता है, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। तो मैं यहाँ पे किसके साथ जाऊंगा, मैं कहूंगा इफ आई ड्रिंक चिल्ड वाटर आफ्टर हॉट फूड आई गेट कोल्ड। ठीक है। वॉइस इज ब्रेकिंग, इज माय वॉइस ब्रेकिंग, लेट मी। माय गॉड, एक्चुअली दिस इज रेनी सीजन, इट्स raining in my region, that's why I'm facing network issues nowadays. एंड दैट वाज द रीजन यस्टरडे जो आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड की गई थी वो पूरी अपलोड नहीं हो पाई थी अच्छे से, फिर आज वो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है। इज माय वॉइस क्लियर नाउ, लेट मी। थोड़ा सा इसको रहेगा बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑन डिफरेंट वाईफाई एज वेल, बट दैट इज आल्सो हैविंग नेटवर्क इशू। इज माय वॉइस क्लियर नाउ? थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। ऑल राइट। सो यहाँ पर हमने समझ लिया इस चीज को। एक सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट फैक्ट है या फिर कोई चीज जो आपका एक्सपीरियंस कहता है कि आपके पास होता ही होता है, मतलब 100% होता है, तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट दोनों में कर देंगे। अब आते हैं फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल की जब बात करते हैं तो लाइकली टू हैपन की बात करते हैं। कोई चीज एक्चुअली में होगी, शायद ऐसा हमें संभावना दिख रही है कि होगी, है ना, प्रोबेबिलिटी पे आप आ गए। एक तो रियल कंडीशनल हो गया, अब प्रोबेबिलिटी पे आ गए, प्रोबेबिलिटी की बेस पे बात करेंगे। अब कोई चीज में लग रही है पक्का होगी, प्रोबेबिलिटी 100% है तो मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो विल डेफिनेटली भी लगा सकते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशनल है। इफ के साथ पहले देख लेते हैं। जैसे इफ और अनलेस दोनों आ सकता है, इस पर हमने थोड़ी सी कल चर्चा भी की थी। अंटिल के साथ भी खेला था, थोड़ा प्रैक्टिकल किया था, है ना। तो हमने देखा था कुछ केसेस में वो इस फ्रेमवर्क में आ जाता है, लेकिन ज्यादातर वो नहीं आ पाएगा क्योंकि और दूसरा केस रहेगा। तो यहाँ पर इफ और प्रेजेंट यहाँ पे लगेगा, या अनलेस या प्रेजेंट लगेगा, और इसके बाद फ्यूचर लगेगा। ये मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। और हमने आपको एक चीज और बताई थी कि आप यहाँ पर विल की जगह चाहे तो मे का यूज कर सकते हैं, जो प्रीवियस स्लाइड आपको दिखाई थी, प्रीवियस पीपीटी दिखाई थी पहले देख, तो मे का यूज भी कर सकते हैं, और मस्ट का यूज भी कर सकते हैं, राइट। कैन का यूज भी कर सकते हैं। तो वो भी आप याद रखेंगे, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं ली है क्लासेस ले लेंगे पिछली। ठीक है। फर्स्ट वाली क्लास तो जरूर ले लेंगे। ओके। जो इसका कंडीशनल वाला। तो हमने बात कर ली फर्स्ट कंडीशनल में, अगर इफ या अनलेस लगाएंगे तो इधर प्रेजेंट होगा उधर फ्यूचर। ये चीज समझेंगे अच्छे से, ये एक ट्रिक है कि आगे वाला फ्यूचर है तो पीछे वाला सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, या फिर आगे वाला फ्यूचर तो इधर सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इफ आई स्टडी आई विल पास, मैं अगर पढ़ता हूँ, अगर मैं पढ़ता हूँ तो मैं पास हो जाऊंगा, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर अनलेस लगाना चाहूँ तो अनलेस का मीनिंग कल भी बताया था। अनलेस का मतलब होता है जब तक ना, ऐसा करके, जब तक नहीं, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ऐसा नहीं होता, है ना। और अनलेस में और अनटिल में डिफरेंस भी कल बताया था, बताएंगे आप लोग। कल मैंने बताया था अनलेस में और अनटिल में क्या डिफरेंस है। मुझे बताइएगा, एक ट्रिक आपको हिंट भी दे देता हूँ। कौन सा टाइम स्पेसिफिक है और कौन सा वर्क स्पेसिफिक है, जल्दी से बताइएगा। अनलेस और अनटिल में, इसके लिए मैंने पोस्ट भी डाल दी थी ग्रुप। ठीक है। जल्दी से बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। अनलेस शॉर्ट में आप बता सकते हैं टाइम स्पेसिफिक और वर्क स्पेसिफिक, अगर ज्यादा लिखना ना चाहें। ठीक है। अनामिका जी ने लिखा है अनटिल टाइम स्पेसिफिक है। अतुल जी ने लिखा है अनलेस वर्क स्पेसिफिक है, अनटिल टाइम स्पेसिफिक है। जल्दी से बताएंगे आप सब लोग। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इफ या अनलेस की, तो इफ की जगह अनलेस लगा सकते हैं। अनटिल यूज नहीं हो पाएगा यहाँ पर, और यूज करना चाहेंगे तो हम स्ट्रक्चर को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, कल हमने देखा, स्ट्रगल करना पड़ा था। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जनरली हम अनलेस का यूज कर लेते हैं। ठीक है। ज्यादातर केस सब लोग अनटिल टाइम और अनलेस वर्क स्पेसिफिक बता रहे हैं। सही है, बढ़िया है, आपको समझ में आई है चीजें, मतलब। तो आगे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाइम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, राइट। हम यहाँ पर कंडीशन की बात कर रहे हैं, इसलिए इफ या अनलेस लगा लेंगे। तो इफ के साथ तो समझ में आ गया होगा। अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, इफ आई स्टडी। देखिए याद रखिएगा, आपका मन कह सकता है कि आप आई विल स्टडी लगा दें, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ अगर मैं पढ़ूंगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल कह रहा है कि यहाँ पर आप आई विल नहीं लगा सकते, ये चीज तो सीखनी है। तो इफ आई स्टडी करेंगे और आगे वाला विल लगा देंगे, आई विल पास। अब मैं अनलेस के साथ करता हूँ, जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं तब तक पास नहीं होगा, है ना। इसका आधा क्या होगा, जब मैं पढ़ूंगा नहीं तो पास नहीं होगा, सही बात। अनलेस आई स्टडी आई विल नॉट पास।
अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं के अर्थ है ना, जब तक ना के अर्थ में, जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं पास ना होऊंगा। इफ की जगह अनलेस लगाया तो यहाँ पर ये नेगेटिव बन जाएगा आगे। अनलेस आई स्टडी आई विल नॉट पास, या आई वॉन्ट पास भी बोल सकता हूँ। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसको बताइएगा। दोनों तरह से पूछूंगा मैं। बताइएगा, अगर मैं अ, खेलूंगा नहीं तो, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो पढ़ूंगा, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो पढ़ूंगा नहीं, नहीं, अगर मैं खेलूंगा नहीं, जब तक मैं खेलूंगा नहीं तब तक नहीं पढ़ूंगा, अगर नहीं आएगा, अनलेस का बना रहे हैं। जब तक मैं नहीं खेलूंगा तब तक नहीं पढ़ूंगा, ये बन गया। जब तक मैं नहीं खेलूंगा तब तक नहीं पढ़ूंगा, जब तक मैं खेलूंगा नहीं तब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, जब तक मैं खेलूंगा नहीं तब तक मैं पढ़ूंगा नहीं। अनलेस से बनाएंगे क्योंकि जब तक आया है यहाँ पे। जल्दी से बनाइए, जब तक मैं खेलूंगा नहीं तब तक मैं पढ़ूंगा नहीं। सावित्री जी का आंसर आया है अनलेस आई प्ले आई विल नॉट, अनलेस आई प्ले आई विल नॉट प्ले। नहीं, थोड़ा सा आपने जल्दबाजी में की है, कोई बात नहीं। अनलेस आई प्ले आई विल नॉट स्टडी। कनिका जी ने किया है अनलेस आई प्ले आई वॉन्ट स्टडी, बहुत बढ़िया। अनलेस आई प्ले आई विल नॉट स्टडी, ठीक है सावित्री जी, मैं समझ गया था कि थोड़ा बैठ, ठीक है। तो अनलेस आई प्ले आई विल नॉट स्टडी हो जाएगा, या आई वॉन्ट भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, या आई विल नॉट भी बोल सकते हैं, आई और डबल एल शॉर्ट में। बिल्कुल सही है अनामिका जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। आप मुझे बताइएगा इसको इफ के साथ बना सकते हैं क्या? इफ के साथ बनाइएगा, ठीक है, फिर उसकी हिंदी मैं बताऊंगा, है ना। आप इस इफ के साथ बनाइए, इसी को, इसी चीज को इफ के साथ बनाइए, क्या हो जाएगा। तो मैं नॉट वाला हटा सकता हूँ। इफ आई प्ले, अगर मैं खेलूंगा तो मैं पढ़ूंगा नहीं, ऐसा होगा क्या? सेंस लगाइए और इफ के साथ बनाइए। इफ के साथ इसमें मैंने क्या किया है, इफ आई प्ले आई वांट रीड स्टडी कहना चाह रहे थे, प्ले टाइम के लिए। बताइएगा इफ के साथ। हाँ, सावित्री जी ने थोड़ा सा एक दिमाग लगा लिया है। इन्होंने कहा इफ आई डोंट प्ले आई विल नॉट स्टडी, ये भी कर सकता है। अतुल जी ने भी यही दिमाग लगाया है कि अगर मैं खेलूंगा नहीं तो मैं पढ़ूंगा नहीं, है ना ये। या फिर और इसको पॉजिटिव में करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, कंडीशन क्या है, बात वही हो जाएगी, लेकिन पॉजिटिव में करने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या करना पड़ेगा? आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं, इफ आई डू नॉट प्ले आई विल नॉट स्टडी, मतलब स्टडी डिपेंड कर रही है खेलने पर। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव में क्या बोल सकते हैं, अगर मैं खेलूंगा तो मैं पढ़ूंगा, मतलब खेलूंगा तभी पढ़ूंगा, कंडीशन क्या होगी, अगर मैं खेलूंगा तो पढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं पढ़ूंगा। यस, विष्णु जी ने किया है इफ आई प्ले आई विल स्टडी, अगर नहीं खेलने को मिल रहा तो नहीं पढ़ूंगा। दोनों ही आपके सही है, मतलब सेंस देखिएगा। एक में आपने नेगेटिव के रूप में किया, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो नहीं पढ़ूंगा, और एक में कहा कि अगर मैं खेलूंगा तो पढ़ूंगा। कंडीशन समझ में आ रही है, तो ये चीज कितने लोगों को समझ में आया? जस्ट राइट, इज इट क्लियर और नो? यस कमला जी। इफ आई स्टडी आई प्ले, अनामिका जी ने क्या है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं, और पहली बात अपने बिल नहीं लगाया है अनामिका जी, ये गलती की है। अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं खेलूंगा, थोड़ा सा आपने उल्टा कर दिया इसको। ये क्वेश्चन था कि अगर मैं खेलूंगा, पहले कंडीशन क्या है, कंडीशन आपको रखनी है खेलने वाली, फिर वो बाय प्रोडक्ट होगा रिजल्ट जो एक्शन। इफ आई प्ले आई विल स्टडी। सावित्री जी को क्लियर है? और बताइए कितने लोग क्लियर है, जल्दी से बताइए। इफ आई प्ले आई विल स्टडी, प्रसाद जी करेक्ट। सुरजीत जी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। आपको मैंने कल बताया था ना, वही चीज चल रही है आपके साथ, ठीक है। आपका डाउट दूर होगा बट वो थोड़ा समय लेगा, डोंट वरी, क्योंकि आप में मैं खुद को देख पा रहा हूँ। अभी आप बस अटेंटिवली क्लास को लेते रहिए, ठीक है। पहला वाला हमने देख लिया था, पॉजिटिव पॉजिटिव, जब फैक्ट की बात करते हैं दोनों साइड पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशनल में क्या रहेगा, एक में इधर हमने पॉजिटिव कर लिया है, क्या बोल रहा हूँ, दोनों साइड प्रेजेंट प्रेजेंट रहेगा। फैक्चुअल में, फैक्चुअल में हमने प्रेजेंट प्रेजेंट देखा था, सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। और इसमें हमने देखा कि इधर प्रेजेंट है तो उधर हमारा फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट यूज किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पर हमने सिंपल फ्यूचर कर लिया, मतलब इधर प्रेजेंट है तो उधर फ्यूचर हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशनल की बात करिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी है, तो यहाँ पे भी जनरली हम क्या करेंगे, पास्ट का मतलब यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज करेंगे, और यहाँ पर हम वुड लगाकर करेंगे। अब देखिए वुड कहाँ से आया है, इसका भी कॉन्सेप्ट है। वुड आया है, जैसे ये विल था यहाँ पर, विल का ही पास्ट फॉर्म होता है वुड, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। विल का ही पास्ट फॉर्म होता है वुड,
तो हमने यहाँ पे किया इफ, और यहाँ पे सेकंड कंडीशनल में हाइपोथेटिकल कंडीशन ही बनेगी। तो ये हो जाएगा वुड वाला। ठीक है। इफ आई अटेंड जस्टिस सर क्लास डेली देन आई विल लर्न स्पीक इंग्लिश 50% आई अंडरस्टैंड। अच्छा जी, चलिए बात करते हैं आगे, देखते हैं। तो सेकंड कंडीशनल की बात करी हमने, तो यहाँ पर हमने पास्ट लिया। ध्यान दीजिएगा, हिंदी पर मैंने बोला था कि हिंदी पर आप अभी समझने के लिए गौर कर सकते हैं, बट ये आपके कॉन्टेक्चुअली जो आप बात करना चाहेंगे उस हिसाब से आप लगा लेंगे। ठीक है। तो पास्ट में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा हिंदी में बताया था कि अगर मैं कहूँ, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, इफ आई वॉन द लॉटरी वी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मैं लॉटरी जीत जाता, नहीं सॉरी, हम अगर हम लॉटरी जीत जाते तो हम ट्रैवल करते वर्ल्ड को, मतलब वर्ल्ड टूर पे जाते, दुनिया को घूमते। अगर हम लॉटरी जीत जाते तो दुनिया घूमते। सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा, बस कान खोले रखिएगा अपना और ध्यान दीजिएगा। अगर मैं अगर हम अ, अगर हम ट्रैवल करते, सॉरी एक मिनट, मैं कमेंट में फंस गया था। अगर मैं अगर हम लॉटरी जीतते तो हम दुनिया घूमते। कंडीशन क्या है? अगर हम लॉटरी जीतते तब दुनिया घूमते, राइट? तो ये एक चीज है। और नीचे मैं इसी का थोड़ा समझाऊंगा, इसी के साथ आपको थर्ड कंडीशनल भी समझा दूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लॉटरी जीतते तो दुनिया घूमते। अगर हम लॉटरी जीतते तो दुनिया घूमते, ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है। अब पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होगा? अगर हमने लॉटरी जीती होती, है ना, अगर हमने लॉटरी जीती होती, इसको मैंने बोला था होता कॉन्सेप्ट, है ना। अगर हमने लॉटरी जीती होती तो हम वर्ल्ड का ट्रेवल करते, हम दुनिया घूम पाते, ऐसा ही बोल सकते हैं। आगे होती जरूर आएगा। अगर हमने लॉटरी जीती होती तो हम दुनिया को घूम पाते, ऐसा, या दुनिया घूमते। तो इसको होता होती कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। बस हिंदी में समझने के लिए बोला है। आप इसका ट्रांसलेशन जैसे करना चाहें तो दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर पहले हमने समझा यहाँ पर कि ये जो है, अगर हमने लॉटरी जीती तो हम जीती तो हम ट्रेवल करते, या सॉरी जीते नहीं, जीतते। अगर हमने लॉटरी जीतते तो हम ट्रेवल करते। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, अभी फिर से रिपीट करता है। पहला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सेकंड वाला लिया, दूसरा हमने इसको लिंक करके देखा थर्ड कंडीशन। तो पहले में पास्ट में देखा हमने कि अगर हम लॉटरी जीतते अगर हम लॉटरी जीतते तो हम दुनिया घूमते। ठीक है, पहला कंडीशन आप लिख लीजिए, इसको ज्यादा बेटर रहेगा। पास्ट वाला कंडीशन है इफ प्लस पास्ट प्लस वुड प्लस आपका जो भी आप यहाँ पर आएगा, इन्फिनेटिव के लिए वो लिखा था, जो भी आपका आएगा वो लिख लेंगे, इन्फॉर्मेशन सॉरी। तो यहाँ पर अगर हमने लॉटरी हम लॉटरी जीतते तो हम दुनिया घूमते, इसकी हिंदी लिख लेंगे, अगर हम लॉटरी जीतते तो हम दुनिया घूमते। ठीक है। अब मैंने इसको दूसरे वे में बोला, थर्ड कंडीशन बना के, अगर हमने लॉटरी जीती होती तो हम दुनिया घूमते। ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा इफ वी हैड वॉन द लॉटरी, वॉन थर्ड फॉर्म भी होता है, सेकंड फॉर्म भी होता है। इफ वी हैड वॉन द लॉटरी वी वुड हैव ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड यहाँ पर ट्रेवल्ड आ जाएगा, वी वुड हैव ट्रेवल्ड द वर्ल्ड, कर सकते हैं। तो इसी चीज को हमने दोनों में समझ लिया। एक में अगर हम लॉटरी जीतते तो दुनिया घूमते, एक में हमने लॉटरी जीती होती तो दुनिया घूम पाते, है ना, ये चीज। तो हिंदी में थोड़ा ऐसा होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है यहाँ पे। बट इंग्लिश में आप समझ लेंगे, तो एक में अगर आप यूज कर रहे हैं पास्ट सिंपल पास्ट तो आप जाएंगे वुड के साथ, और अगर आप पास्ट परफेक्ट यानी हैड यूज कर रहे हैं तो वुड हैव के साथ जाएंगे। ये दोनों ही यूज किया जा सकता है कन्वर्सेशन। ठीक है। आप एम्फोसाइज कितना कर रहे हैं पास्ट पर, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके मूड पर भी डिपेंड करता है। मैं पास्ट के साथ भी बना सकता हूँ और पास्ट परफेक्ट के साथ भी बना सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस चीज को समझने की कोशिश की। तो अब मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ आपसे। सेकंड कंडीशन में बताइएगा कि अगर तुम यहाँ आते तो मैं तुम्हारे घर जाता। अगर तुम यहाँ आते तो मैं तुम्हारे घर जाता। सेकंड इज बिफोर वर्क, थर्ड इज आफ्टर वर्क। इसको भी कह सकते हैं बिल्कुल। सेकंड इज बिफोर वर्क, थर्ड इज आफ्टर वर्क। कहना चाह रही है ये सावित्री जी कि जो सेकंड वाला है कि हमने
यहाँ पे इसे एग्जाम्पल समझेंगे। अगर हम लॉटरी जीतते तो हम दुनिया घूम पाते, है ना, ये एक बात बोल रहे हैं। अब ये इसमें अब बात हो रही है, अगर मैं थर्ड की बात करूं, अगर ऐसा हो जाता, मान लो ये काम मैं जीत गया होता, ऐसा हो गया होता, तो मैं दुनिया घूम लिया होता, मतलब वो काम हो गया होता, तो उसके बाद की बात हो रही है। तो सावित्री जी ने थोड़ा अच्छे से समझा इसका। सेकंड वाला कंडीशन है वो बिफोर बर्थ है। और एक हाइपोथेसिस ही है, याद रखेंगे। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन ही है, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, लॉटरी हमने जीती नहीं है। दोनों ही अनरियल कंडीशन है। तो पास्ट में आपने देखा दोनों ही अनरियल कंडीशन है ना। और इसमें हमने ये कह दिया कि शायद ये हो सकता है, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये अनरियल कंडीशन